Good morning, student. I hope you will fit and fine at your home. And today I revise the those chapter which will come in your unit third, and it's very important for you. So the first chapter is the talkative barber. At first, I explain this chapter. I explain the summary of this chapter in English, so you listen properly. In this chapter, the story tells us about a barber who is very talkative person. He is a chatterbox who does not stop talking even when he is working. One day, a sultan calls him for greeting his head shaved. However, little does the sultan know what he is in for. The barber reaches the Sultan palace. Instead of doing his job, he starts talking. The Sultan is now getting irritated and wants him to be done with his task quickly. But the barber is one stubborn fellow who just does not stop talking despite the Sultan telling him not to. This story give us a funny account of the exchange that happens between the two. Sultan is not happy with his talkative nature, but that does not stop the barber. As it is the nature of the talkative barber, he can't help it but talk about anything and everything. The story is about a barber living in the city of Cascade. Everyone knows the barber to be a great talker. A sultan wants to get a haircut one day, so he calls the barber to do the job. However, as soon as the barber reaches, instead of getting on with the job, he starts talking non-stop. Moreover, the sultan gets fed up with this behavior and ordered him to leave with the payment without getting his haircut. Further, the barber does not agree to this and insists that he will finish the job. Despite this, the barber keeps on talking about something or other. The Sultan tells him many times to stop talking and do his job, but all in vain. The barber tells him about his brothers and does not even start with shaving the head. As the Sultan starts getting angrier, the barber decides to start saving. However, soon he stops halfway and goes out to check the time. He leaves the Sultan's head half shaved but come back again to resume. We learn why now that the Sultan is much hurry what does not disclose why. Even though the barber requests many times, the Sultan does not tell him why he is such a hurry. To get rid of him, Sultan tell him that he is inviting friend over a feast. That is why he need to go. On hearing this, the barber realized he too invited his friend but has not made any preparation. Now to do away with him, the Sultan offers him all the food prepared for the feast to him for feeding his friend. Even then, the barber wastes more time in inspecting all the dishes which the Sultan offers to him. Now the Sultan is getting restless and agrees to every wish of the talkative barber. He want to get rid of the barber. Get rid of means होता है छुटकारा पाना. एक्चुअली वो छुटकारा पाना चाहता था उससे barber से. After the barber is content
कंटेंट संतुष्ट होना, satisfy. After the barber is content, he starts shaving his head again. At last, he takes a break once again and exclaims that he was not aware the Sultan was so generous. However, the case was just that the Sultan was wanting to get rid of him at any cost. Now, in the final, story tells us that we should not be extra talkative and focus on our job. Otherwise, people will get annoyed with us easily. Means ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपने सिर्फ जॉब पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग हमसे चिढ़ने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे. The story tells us we should not be extra talkative and focus on our job, otherwise people will get annoyed with us easily. Now we explain this chapter line by line. Okay. Long ago, a sultan, बहुत समय पहले एक सुल्तान whose name was सरियर, जिसका नाम सरियर था, रूल्ड ओवर आर लार्ज किंगडम, जो कि एक बहुत बड़े राज्य में शासन करता था. हिज क्वीन वाज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो क्वीन थी वो अच्छी स्टोरी टेलर मतलब स्टोरी सुनाने वाली थी. ईच नाइट सी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, हर रात को वह उसे एक कहानी सुनाती थी. सी नरेटेड एंशियंट पेरिसियन एंड अरेबिक फोल्क स्टोरी, वो उसे एंशियंट पेरिसियन अरेबिक फोल्क स्टोरी को बताती थी, सुनाती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, ये भी उनमें से एक स्टोरी है. फ्रॉम द अरेबियन नाइट बुक की एक स्टोरी है, द टॉकेटिव बार्बर. सो लेट्स स्टार्ट. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन. यह कहानी पढ़िए एक आदमी की है, हु कांट स्टॉप टॉकिंग, जो कि बोलने से नहीं रुक सकता. इन द सिटी ऑफ कैस्कल सिटी में लिव्ड अ बार्बर, जो कि बार्बर रहता था, हु वाज अ ग्रेट टॉकर, जो कि बहुत बड़ा टॉकर था. ये स्टेप बाय स्टेप आपके लिए स्टोरी आई वो एक्सप्लेन बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चन विल कम इन एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं क्वेश्चन. तो ये नहीं कि सर ने ये नहीं कराया, स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यू भी आ सकते हैं. जिसको स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर क्लियर होगा वही एमसीक्यू कर पाएगा. ओके, सो फोकस ऑन द स्टोरी. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड, एक बार सुल्तान ने बुलाया बार्बर को कि भाई हमारे शेव हेड को मतलब बाल बना लो, एक तरीके बाल बनाने के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टीड ऑफ शेविंग हिम, बार्बर ने बातें करना शुरू कर दी नॉन स्टॉप, बजाय, इंस्टीड मीन्स होता है बजाय, सेविंग हिम बजाय अपने काम को फोकस करने के लिए उन्होंने स्टॉकिंग मतलब टॉकिंग लगातार शुरू कर दी. बिगिन टू डू यू. द सुल्तान गॉट एंग्री, इससे सुल्तान नाराज हो गए. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क, तुम कब अपनी बात करना बंद कर रहे हो और काम करना शुरू कर रहे हो, बताइए. द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने उत्तर दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटरर, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, एक चैटरर बातूनी कह के तुमने मुझे चोट पहुंचाई है. राजा सुल्तान, फॉर एवरीवन से आई एम वेरी क्वाइट, सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं. whom you might call चैटरर, जिनको आप बुला सकते हैं चैटरर. देयर नेम आर, उनके नाम, बकबोन फर्स्ट, सेकंड नाम बकबूरिया, थर्ड का नाम वकवक, फोर्थ का उलकोज, फिफ्थ का उलनसी, सिक्स का सकाबक. ये भाई हैं. अगर आपको माय डियर स्टूडेंट यू हैव फेसिंग प्रॉब्लम टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ द बार्बर, देन द ब्रैकेट में इनकी प्रोनाउंसिएशन दी है. जैसे फर्स्ट का है बैकबोन नहीं बुकबोन, सेकंड बुकबूरिया, थर्ड बकबक, फोर उलकोज, फिफ्थ उलनसी एंड सिक्स सकाबक. वन इज द हम बैक्ड, एक के कुबड़ है, हम पैक्ड मीन्स होता कुबड़ है. वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है.
वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है। वन इज डीफ, एक डीफ है। एंड अदर हैज ए डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ग्रेट टॉकर, और दूसरे को बाकी के बोलने में प्रॉब्लम आती है जब वो बातें करते हैं। वट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्प्रेइंग विद वर्ड, लेकिन मैं बहुत शांत और अपने शब्दों में खरा हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने कहा कि इसे भाई 3 पीस सोने के दे दो। लॉसिंग ऑल पेशेंट, जब उनका धैर्य खो गया। एंड सेंड हिम अवे, आई विल नॉट बी सेव टुडे, और इसे भेज दो, मैं आज सेव नहीं कराऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर चिल्लाया, मेरे मालिक, इट वाई नॉट आई एम हु कम टू सी यू, इट इज यू यू। मैं नहीं हूं, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ, ये आप हैं जो आपने मुझे बुलाया है। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस एंटिल आई हैव सेव यू, जब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपकी सेव नहीं कर लूँ, आपके बाल नहीं बना लूँ। ही देन बिगिन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, कुछ देर बाद वो अपनी एक दूसरी स्टोरी बताने लगा। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच एंड लेट मी गो क्विकली, रुक जाओ बोलना, अब मुझे जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट, मुझे और भी मामले देखने हैं बहुत महत्वपूर्ण। आई हैव टू आफ्टरनून, सैड सुल्तान, सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर में जाना है। व्हेन ही सा दैट द सुल्तान वाज रियली एंग्री, जब उसने देखा कि सुल्तान वाज रियली एंग्री, सुल्तान बहुत ही वाकई में नाराज हो गए हैं विद हिम, उससे। द बार्बर सैड, तो बार्बर ने कहा, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, नाराज मत होइए। आई विल बिगिन टू शेव यू, अब मैं आपकी शेव करता हूँ। सेइंग दिस, यह कह के, ही वॉश्ड द सुल्तान हेड, उसने सुल्तान के सिर को धोया, मतलब पानी लगाते हैं जो लगाया बाल काटने से पहले। एंड बिगिन टू शेव, और शुरुआत कर दी बाल काटने की। वट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम विद हिज रेजर, ही हैड नॉट टच्ड हिम, उसने उन्हें छुआ ही नहीं 4 टाइम विद रेजर से। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और उसने सब शुरू का फिर कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इस मामले में। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने ऑर्डर दिया। गो ऑन सेविंग मी, बाल काटो, बोलो मत, काम पे फोकस करो। बी पेशेंट, धैर्य रखें, सैड द बार्बर, बार्बर ने कहा, सर तसल्ली रखें। परहैप यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, परहैप यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल, ऐसा लगता है, परहैप शायद, यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल, आप नहीं समझ पाए हैं मुझे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसे आप नहीं समझ पाए। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट द मैटर ग्रेट इंपॉर्टेंट इज ऑल, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, यू विल टेल मी, आप मुझे बताएंगे कि क्या है ये मामले जो आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मामले में आना है, कौन से मामले हैं। इज ऑल अबाउट, देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, अगर आप मुझे अपने इंपॉर्टेंट मामले बताएंगे तो मैं आपको इसके बारे में ओपिनियन दूंगा, अपना विचार दूंगा, राय दूंगा, एडवाइस दूंगा। मीन्स ये है, जब राजा इरिटेटेड, द किंग बिकम इरिटेटेड with war, then he go that I want to go and some extra important affair. So the barber also tell him that if you have some important affair, I please listen to me, please tell me the important matter, I will give you opinion, मैं तुम्हें ओपिनियन दूंगा। मीन्स वो बार बार सुल्तान को ओपिनियन देगा। ये देखें उससे टॉकेटिव नेचर। फिनिश सेविंग एट वंस, एकदम रोक दो यहीं पे सेविंग। द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान ने कहा एकदम रोक दो यहीं पे। व्हाट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। व्हाट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, यह करने के बजाय, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव, उसने सुल्तान लेफ्ट माने छोड़ दिया, आधा ही सिर छोड़ दिया, टू गो टू व्हाट टाइम इट इज, और टाइम देखने चला गया। माई पेशेंस इज एक्साइटेड, सुल्तान करे, सुल्तान ने कहा अब मुझसे रुका नहीं जाता, अब मेरा बेचैन मतलब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। बी कॉम, शांत रहें, माई मास्टर, मेरे मालिक, एंड यू शैल बी शेप्ड इन अ मोमेंट, आपकी शेप्ड बहुत जल्दी बन जाएगी। सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस, बार्बर ने यह कहा और यह कह के ही कंटिन्यू शेविंग द सुल्तान, वो लगातार बाल काटता रहा सुल्तान के।
What while he was doing this, लेकिन जब वो यह कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन वो बात करने से नहीं रुक रहा था, उसका मुंह लगातार कॉन्टिन्यूस चल रहा था। लेकिन सुल्तान क्या चाहते थे कि सुल्तान ये चाहते थे कि वो शांत रह के अपना साइलेंटली ही विल डन द जॉब, वो अपना काम करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट एंड यूजफुल, ही सेड। बार बार ने फिर इंटरफेयर करा कि सर, अगर आप मुझे इन्फॉर्म करें, बता सकें वो इम्पोर्टेंट अफेयर कौन से हैं जो जिन्हें आपको जाना है सुलझाने, आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको कुछ और सलाह दूं, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। ही सैड, उसने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बट नाउ डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान बिल्कुल ही फेड अप हो गए और उन्होंने निश्चय करा कि अब वो सुल्तान उसे बार्बर को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ही टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया, उसने मतलब सुल्तान ने बार्बर को बताया कि ही वॉज गिविंग अ फीस टू सम फ्रेंड, कि वो देने जा रहे हैं एक दावत कुछ दोस्तों को, एट नून, दोपहर को। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसलिए उन्हें जल्दी है, वो कोई दावत देने जा रहे हैं अपने दोस्तों को, इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, जब बारबर ने सुना कि सुल्तान मेंशन अ फीस्ट, सुल्तान एक दावत दे रहे हैं, ही एक्सक्लेम, वो बोला, द रिमाइंड मी, अरे इस बात से मुझे भी याद आ गया, यस्टरडे, कल, आई इनवाइट 4 or 5 फ्रेंड टू कम माई हाउस, मैंने भी इनवाइट करा था 4 or 5 दोस्तों को अपने घर पे बुलाने के लिए आज। वट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गया। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कोई तैयारी नहीं की। फॉर देम, उन लोगों के लिए। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, अब सुल्तान को उस पे, मर्सी मीन्स होता है दया, पिटी, दया आ गई उस बार्बर पे। वाई रेडी टू डू एनीथिंग टू बी गेट राइड ऑफ हिम, अब उसे वो देने के लिए सब कुछ तैयार थे, जिससे उससे मतलब वह उनका छुटकारा छुटकारा मिल जाए उससे। वी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने उत्तर दिया, बी क्विक, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टूडे, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड, और वो आप सब खाना ले जाओ जो मैंने तैयार करा है आज के लिए, अपने लिए तैयार करा है, वो आप सब ले जाओ, लेकिन अब जाओ यहाँ से। प्लीज शो मी द फूड, अब फिर उसने कहा, कितना टॉकेटिव है, प्लीज शो मी द फूड, कृपया मुझे वो भोजन दिखाइए, सो दैट आई मे जज, जिससे मैं जज कर सकूं, फैसला ले सकूं कि इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड, कि यह मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है, इनफ है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान ने कहा, आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास पर्याप्त भोजन है आपके लिए। What he ordered that all the food prepared for the feast be brought in, लेकिन उन्होंने फिर भी ऑर्डर दिया कि भाई सब खाना जो कि तैयार किया गया दावत के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मतलब सुल्तान ने कहा, उसे लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने लुक्ड ओवर, जांच पड़ताल की, फूड की, एंड सेड, कहा, दिस इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। वट आई सेल वॉन्ट मोर फ्रूट फॉर द डेजर्ट आल्सो, लेकिन मैं कुछ फ्रूट चाहता हूँ। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट, जो खाने के बाद जो थोड़े फलों लेते हैं आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेक, मतलब लंच के बाद थोड़े जो फल खाते हैं उसे डेजर्ट कहते हैं, खाने के बाद फलों का आहार, फल लेना। तो आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट आल्सो, मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए डेजर्ट के लिए। द सुल्तान इन डिस्परेशन सिंस हिज हेड ऑफ हाफ शेव ऑर्डर्स ऑफ फ्रूट आल्सो ब्राउट इन, जो सुल्तान के हाथ से बना हुआ, तो उन्होंने उसी में कहा, उसी पोजीशन में कहा भी फ्रूट लाए जाएं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन दिस सेपरेटली, उसने छोड़ दिया, बार्बर ने छोड़ दिया सुल्तान की हाफ सेव और एग्जामिन करने लगा फूड को। सी टुक अब हाफ एन आवर, उसने निरीक्षण किया, हाफ एंड आवर, द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, अपने पटकते रहे पैर, बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने जल्दबाजी नहीं की। एट लेंथ हाउएवर ही टुक द रेजर, आफ्टर फ्यू मिनट ऑफ वर्क स्टॉप सडन, क्राइड, आई नेवर न्यू यू आर सो जनरस,
काफ़ी देर बाद रेजर को उठाते हुए उसने कहा, मतलब बार्बर ने, कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, जो आपने मुझे ये सब चीज़ दे दिया. ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ this chapter has been finished, and I gave you some question as a home assignment. You will do at your home and send to in my number. Okay, it is mandatory for all the student. Okay, have a nice day.